ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایک جن ہوا کرتا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوفناک ہوا کرتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس سے بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے۔ گاؤں کے لوگ رات کا وقت ہوتے ہی اپنے کھڑکی دروازے بند کر لیا کرتے تھے اور اپنے گھر کے سامنے یہ لکھ دیا کرتے تھے کہ اے جن کل آنا۔ اور وہ جن بہت زیادہ بے وقوف ہوتا تھا، وہ کل آنے کا سوچ کر وہاں سے چلے جایا کرتا تھا۔ ایک دن وہ جن سوچتا ہے، کل آنا اے جن کل آنا، یہ پڑھ کر میں تھک چکا ہوں اور مجھے بھوک بھی بہت زیادہ لگی ہے۔ آج تو میں کسی کو اس کے گھر سے اٹھا کر لے جاؤں گا اور کھاؤں گا۔ اسی گاؤں میں ایک سیٹھ رہا کرتا تھا۔ وہ ان باتوں کو نہیں مانا کرتا تھا اور اس نے اپنے گھر کے سامنے یہ بھی نہیں لکھا تھا کہ اے جن کل آنا۔ اس کی بیوی اس سے کہتی ہے، ہم اس گاؤں میں نئے آئے ہیں، ہمیں گاؤں والوں کی بات مان لینی چاہیے اور اپنے دروازے کے سامنے یہ لکھ دینا چاہیے کہ اے جن کل آنا، ورنہ ہم بہت زیادہ پچھتا سکتے ہیں۔ ارے جنوین کچھ نہیں ہوتا ہے اور وہ گاؤں والے ہمیں پاگل بنا رہے ہیں تاکہ ہم لوگ ڈر جائیں اور گاؤں سے بھاگ جائیں، لیکن ہم لوگ نہیں لکھیں گے اور اس گاؤں سے بھی نہیں جائیں گے۔ اتنی دیر میں وہ جن اپنا شکار ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس سیٹھ کے گھر کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس گھر کے سامنے یہ نہیں لکھا کہ اے جن کل آنا، اے جن کل آنا۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس گھر کے اندر جا کر اس سیٹھ کی بیوی کو ہوا میں اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ وہ بہت زیادہ اس کی بیوی چلاتی ہے لیکن اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں آتا ہے۔ وہ اس کو لے کر اپنے ساتھ ایک گاڑ میں چلے جاتا ہے۔ اس کا شوہر گاؤں والوں کو بلاتا ہے، گاؤں والوں گھر سے باہر نکلو، گاؤں والوں گھر سے باہر نکلو، جن میری بیوی کو اٹھا کر چلے گیا ہے، میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ گاؤں والے اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ ارے بھائی کیا ہوا؟ کیا تمہاری بیوی کو وہ جن اٹھا کر لے گیا؟ میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ اپنے دروازے کے سامنے اے جن کل آنا لکھو، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ اب ہم کیا کریں؟ تمہاری بیوی کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ مجھے معاف کر دو، میں نے تم لوگوں کی بات پر عمل نہیں کیا۔ وہ میری بیوی کو اٹھا کر لے گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے بھی اٹھا کر لے جائے۔ جا کر اس جن کو ختم کر دو، میری مدد کرو۔ پھر وہ گاؤں والا سارے گاؤں والوں کو بلا لیتا ہے اور اس کے بعد وہ لوگ گفا میں چلے جاتے ہیں۔ بھوت اتنے زیادہ لوگوں کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور ڈر جاتا ہے اور وہاں سے غائب ہو جاتا ہے اور گاؤں والا اس کی بیوی کو بچا کر لے آتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایک جگہ ہوا کرتی تھی۔ وہاں پر کنواں ہوا کرتا تھا۔ اس کنویں کا پانی جو بھی پیا کرتا تھا، وہاں پر موجود چڑیل اس کو مار دیا کرتی تھی۔ ایک دن ایک آدمی بازار جا رہا تھا تو وہ سوچتا ہے کنویں کو دیکھ کر، ارے بازار تو ابھی بہت دور ہے، مجھے پیاس بھی بہت تیز لگ رہی ہے، کیوں نہ اس کنویں میں سے پانی نکال لوں۔ وہ جیسے ہی اس کنویں میں سے پانی نکالنے لگتا ہے تو وہ اس کنویں کے اندر خود بخود چلے جاتا ہے۔ بڑے دنوں بعد بہت اچھا پکڑا ہاتھ لگا ہے، آج تو تیرا خون پیوں گی اور ساتھ میں تیری گردن سے تیرے سر کو اتار کر کھاؤں گی۔ ارے چڑیل مجھے جانے دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ بس مجھے پیاس لگ رہی تھی تو میں نے تمہارے کنویں سے پانی پینے کی کوشش کی تھی۔ تو نے یہی تو غلطی کی ہے، تو نے میرے کنویں کا پانی پیا ہے اور جو بھی میرے کنویں کا پانی پیتا ہے وہ اپنی جان بچا کے واپس نہیں جا پاتا۔ دوسری اور اس کے گھر والے بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے۔ سب یہ سوچ سوچ کر بہت زیادہ رو رہے تھے کہ کہیں اس نے اس کنویں کا پانی تو نہیں پی لیا، اب تو وہ چڑیل کے ہاتھوں نہیں بچے گا۔ اس کا بڑا بھائی کنویں کے پاس پہنچ جاتا ہے اپنے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے۔ بھائی کہاں ہو تم؟ کہاں ہو تم؟ کیا تم اس کنویں کے اندر ہو؟ اور اگر اندر ہو تو جواب دو۔ تبھی کنویں میں سے آواز آتی ہے، ہاں میرے بھائی، شکر ہے کہ تم آ گئے، لیکن تم اس کنویں کا پانی مت پینا ورنہ یہ چڑیل تمہیں بھی مار ڈالے گی۔ جاؤ، جا کر کسی کو میری مدد کے لیے بلا کر لاؤ، جاؤ کسی بابا کے پاس جاؤ۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، میں کسی کے پاس جاتا ہوں مدد کے لیے۔ اور پھر وہ اپنے بھائی کے کہے مطابق ایک بابا کے پاس چلے جاتا ہے اور وہ بابا اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے ساتھ اس کنویں کے پاس چلے جاتا ہے۔
ऐ चुड़ैल, उसे छोड़ दे और यहाँ से बाहर निकल जा, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। फिर वो चुड़ैल कुएं से बाहर आ जाती है और बाबा कुछ पढ़ने लगता है और जैसे ही बाबा उसके ऊपर फूंक मारता है वो चुड़ैल जलने लगती है और थोड़ी ही देर में वो चुड़ैल जलकर खत्म हो जाती है। एक दफ़ा का जिक्र है, एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक फैमिली रहा करती थी। उनके बच्चे को स्ट्रॉबेरी खाना बहुत पसंद था। मम्मी, आपको पता है ना कि इस आइसक्रीम के ऊपर स्ट्रॉबेरी नहीं लगी, फिर भी आपने मुझे इसे क्यों दिया? मैं नहीं खाने वाला, इसे फेंक दीजिए या उस राहुल को दे दीजिए। बेटा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें शाम को नई आइसक्रीम ला दूंगी जिसके ऊपर फ्रेश स्ट्रॉबेरी लगी होगी, और उस राहुल को तो मैं कुछ भी नहीं दूंगी। वहीं राहुल जो यतीम था, जो अपनी चच्ची के यहाँ रहा करता था, उस आइसक्रीम को देखकर उसका बड़ा दिल ललचाया, लेकिन उसकी चच्ची ने उसके सामने उस आइसक्रीम को डस्टबिन में फेंक दिया। शाम को राहुल की चच्ची फ्रेश स्ट्रॉबेरी लाती हैं। बेटा ये लो फ्रेश स्ट्रॉबेरी, मुझे फ्रेश स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम नहीं मिली, इसी वजह से मैं स्ट्रॉबेरी ले आई, तुम इन स्ट्रॉबेरी को खा लो। मम्मी वो सब तो ठीक है, लेकिन इधर तो एक खराब स्ट्रॉबेरी है, क्यों ना हम उसे उस राहुल को दे आए। उस राहुल की जब तबीयत खराब होगी तो मुझे बहुत मज़ा आएगा। मैं अभी जाकर उसको ये वाली स्ट्रॉबेरी देकर आता हूँ। वो जाकर वो स्ट्रॉबेरी राहुल को दे आता है। पहले तो राहुल को अपने कानों पर यकीन नहीं आता है, फिर जब वो स्ट्रॉबेरी को खराब देखता है तभी उसको सारा मामला समझ आ जाता है। जैसे ही वो उस खराब स्ट्रॉबेरी को खाने लगता है तभी उसमें से आवाज़ आती है, अरे रुको रुको, मुझे मत खिलाओ, वैसे भी मैं खराब हूँ, अगर तुम मुझे नहीं खाओगे तो मैं तुम्हारी 3 ख्वाहिश पूरी करूँगी। क्या हकीकत में तुम मेरी ख्वाहिशात पूरी करोगी? ऐसा है तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तो मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि मुझे इनसे दूर एक नए घर में ले जाओ, और दूसरी ख्वाहिश ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉबेरीज दे दो। लेकिन तीसरी ख्वाहिश, जब ये 2 ख्वाहिश पूरी होंगी तभी मैं मांगूंगा। और फिर स्ट्रॉबेरी अपना मैजिक करती है और वो लोग एक नए घर में चले जाते हैं और उसके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉबेरीज आ जाती हैं। वो उससे उसकी तीसरी ख्वाहिश के बारे में पूछती है। अब तुम मुझे अपनी आखिरी ख्वाहिश के बारे में बताओ। मैं तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगी, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, वैसे भी मैं खराब हो चुकी हूँ। मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि तुम मेरे साथ हमेशा रहो। मैं तुम्हें अपने घर के पिछले आंगन में दबा दूँगा और इस तरह तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे। फिर वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, एक गांव में एक आदमी रहा करता था। वो अपनी बीवी और अपने बच्चे के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा था। एक दिन उसका बेटा उससे कहता है, अब्बा जान, आपको नहीं लगता कि हमने गुलाब जामुन खाए हुए बहुत देर हो चुकी है? मेरा आज गुलाब जामुन खाने को दिल कर रहा है। आप ऐसा कीजिएगा, जब ऑफिस से घर वापस आ रहे होंगे तो मेरे लिए गुलाब जामुन लेके आइएगा। बेटा बात तो तुम ठीक कह रहे हो, गुलाब जामुन खाए हुए बहुत देर हो चुकी है। मैं भी काफ़ी दिनों से सोच रहा था। चलो मैं आते वक्त तुम्हारे लिए गुलाब जामुन ज़रूर लेकर आऊँगा। उस दिन उसका गुलाब जामुन खाने का कुछ ज़्यादा ही दिल कर रहा था। वो घर में बैठे बैठे अपने अब्बा जान का इंतज़ार कर रहा था। फिर उसके अब्बा जान अपने एक दोस्त से मिलकर वापस आते हैं तो उनको कोई गुलाब जामुन की दुकान खुली नहीं दिखती। वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अब मैं क्या करूं, यहाँ पर तो कोई दुकान भी नहीं खुली हुई। अब मैं कहाँ से गुलाब जामुन लेकर जाऊं? आगे देख लेता हूँ, हो सकता है कोई गुलाब जामुन की दुकान हो। कुछ दूर आगे जाने के बाद उसके अब्बा जान की नज़र एक मिठाई की दुकान पर जाती है। वो बहुत खुश होते हैं। अरे भाई, आप रात के वक्त दुकान क्यों खोलते हैं? खैर छोड़ो, आप मुझे 1 किलो गुलाब जामुन दे दीजिए। वैसे आपको दिन के वक्त दुकान खोलनी चाहिए, आप दिन के वक्त दुकान क्यों नहीं खोलते? भाई मैं सुबह के वक्त कोई और काम करता हूँ और रात के वक्त ये दुकान चलाता हूँ। मेरे पास रात के वक्त भी बहुत ज़्यादा कस्टमर आते हैं। देखना, आप एक मरतबा मेरे गुलाब जामुन खाओगे और दूसरी मरतबा ज़रूर आओगे। फिर वो उससे गुलाब जामुन लेकर घर चले जाता है और अपने बेटे को देता है। उसका बेटा जैसे ही गुलाब जामुन खाता है उसको बहुत मज़ा आता है। वो गुलाब जामुन खाते ही जाता। अरे बेटा, तुम मुझे भी कुछ गुलाब जामुन दे दो ना, कब से तुम खुद ही खाई जा रहे हो और मैं भी तो देखूं कितने मज़ेदार हैं ये गुलाब जामुन जिनको तुम खाते ही जा रहे हो। ये कहकर उसकी माँ उसके हाथ से मिठाई का डब्बा ले लेती है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है,
अम्मी जान, ये मेरे लिए मिठाई का डब्बा है, आपके लिए नहीं। मुझे मेरा मिठाई का डब्बा वापस दीजिए। ये कहकर वो अपनी अम्मी जान के हाथ से मिठाई का डब्बा ले लेता है। उसकी अम्मी जान को बहुत गुस्सा आता है। वो उस पर हाथ उठाने ही लगती हैं तो उनका हाथ खुद ब खुद रुक जाता है। ये बात उनको बहुत अजीब लगती है। वो ये बात उसके अब्बा जान को बताती है। उनके अब्बा जान जाकर मिठाई वाली दुकान पर जाते हैं। हैरानी की बात ये थी कि वो जब दिन के वक्त उस दुकान के पास जाते हैं तो वो दुकान वहाँ पर मौजूद ही नहीं होती। वो ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर एक आदमी था। वो उससे पूछता है, अरे बेटा, तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? क्या तुम किसी चीज़ को ढूंढ रहे हो? क्या तुम उस दुकान को ढूंढ रहे हो जो 12 से 4 बजे तक खुलती है रात के? मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तुम्हारे एक बेटे ने उस मिठाई को खा लिया है और अब वो अजीबोगरीब हरकत कर रहा है। हाँ पापा, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। मैं उस दुकान को ही ढूंढ रहा हूँ। उस दुकानदार की मिठाई खाकर मेरे बेटे को पता नहीं क्या हो गया है। वो अजीबोगरीब हरकत कर रहा है। उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं। अरे बेटा, हकीकत बात ये है कि वो दुकान किसी इंसान की नहीं है, बल्कि वो दुकान एक जिन की है। वो दुकानदार अपनी मिठाइयाँ लोगों को खिलाकर अपने वश में करता है। इसका सिर्फ एक ही हल है, तुम रात के वक्त जब उसकी दुकान खुले उसको आग लगा दो। मुझे अपने बेटे की जान बहुत ज़्यादा प्यारी है। मैं अपने बेटे की जान के लिए उस दुकान को आग लगा दूंगा। फिर वो रात के वक्त उस दुकान में पेट्रोल फेंक देता है और जैसे ही वो दुकानदार यानी जिन उस दुकान में दाखिल होता है वो उस दुकान को आग लगा देता है और वो दुकानदार जिन मर जाता है और फिर उसके बाद उसका बेटा ठीक हो जाता है। एक दफ़ा का जिक्र है, 2 दोस्त हुआ करते थे। उनको अलग अलग जगह पर घूमने का बड़ा शौक़ हुआ करता था। एक का नाम रवि और दूसरे का नाम राहुल हुआ करता था। रवि राहुल से मिलने के लिए एक जगह पर आता है। अरे आराम से रवि, चल तू ये बता तू कहाँ से आ रहा है? मैंने तुझे कहाँ तलाश नहीं किया, जल्दी से बता। राहुल, मैं लाइब्रेरी से आ रहा हूँ। मेरी माँ कहती है कि तू पढ़ता ही नहीं है। फिर मैंने किताबें पढ़ना शुरू की तो मेरी नज़र लाइब्रेरी की एक बुक पर पड़ी जिसमें लिखा हुआ था कि हमारे शहर के जंगल में एक नदी है। उस नदी में एक चुड़ैल रहती है और जो भी उस नदी को हाथ लगाएगा वो एक मछली में तब्दील हो जाएगा। चल कर देखते हैं कितनी सच्चाई है इसमें। अरे भाई, चुड़ैल वड़ेल कुछ नहीं होता, ना ही कुछ जिन होता है। चल कर अपने जंगल में नदी को देखते हैं। तू सबसे पहले उसको हाथ लगाना और पता लग जाएगा कि कितनी सच्चाई है इस बात में। फिर वो दोनों जंगल की ओर चल देते हैं और कुछ ही देर में जंगल में मौजूद नदी के पास पहुंच जाते हैं। उनमें से राहुल कहता है, अरे रवि, तू सबसे पहले इस पानी को हाथ लगा और मालूम हो जाएगा कि तू मछली बनता है कि नहीं बनता। फिर वो जैसे ही उस पानी को हाथ लगाता है वो मछली में तब्दील हो जाता है। फिर वो बहुत ज़्यादा रोता है और रोते रोते कुछ सोच रहा होता है चुड़ैल को ख़त्म करने की। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जल्दी से जाकर बिजली की तार पानी में डाल देता है। पहले वो सारी मछलियाँ बास्केट में डाल लेता है। जैसे ही बिजली उस चुड़ैल को लगती है, चुड़ैल पानी से बाहर आकर तड़पने लगती है। हाँ, बचाओ बचाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हाँ। थोड़ी देर बिजली के झटके खाने के बाद वो चुड़ैल खत्म हो जाती है और सारे गांव वाले वापस आ जाते हैं। गांव वाले उसका शुक्रिया अदा करते हैं और अपने घरों को चले जाते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, एक गांव हुआ करता था। वहाँ पर एक झूला हुआ करता था जिस पर से रात के वक्त आवाज़ें आया करती थी। वो एक घर के पीछे हुआ करता था जहाँ पर 2 मियाँ बीवी रहा करते थे। एक का नाम रामू हुआ करता था और उसकी बीवी का नाम रेशमा हुआ करता था। वो दोनों एक रात सो रहे होते हैं, आवाज़ें आती हैं तो वो उठ जाते हैं। तभी वो देखते हैं खिड़की से कि एक औरत वहाँ पर झूला रह रही है आधी रात के वक्त। तो तभी वो उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा कर वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, लेकिन वो उस रात सो जाते हैं। अगले ही दिन उसका भाई उससे मिलने के लिए अपनी बीवी के साथ उसके घर आता है। सब लोग खूब गपशप मारते हैं, लेकिन रात हो जाती है। तभी उसके भाई की बीवी की नज़र बाहर चूल्हे पर चले जाती है।
अरे शहर में ऐसा नज़ारा तो देखने को नहीं मिलता है। मैं तो बाहर जाकर झूला झूलने जा रही हूँ। उन दोनों को उस झूले की हकीकत के बारे में मालूम नहीं था। वो जैसे ही झूला लेकर वापस घर जाने लगती है तो वो चीखें मारने लगती है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पाँव पकड़े हुए है। बचाओ बचाओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरे पाँव पकड़े हुए हैं। वो मुझे मार डालेगा। इस पेड़ पर किसी चुड़ैल का साया है। बचाओ भैया, भाभी। उसके घर वाले सब अपना नाम सुनते ही नींद से जाग जाते हैं और वहाँ पर आ जाते हैं। उसका शौहर एक गांव वाले को बुला कर लाता है। वो उसे कहता है कि उसकी रस्सी को काट डालो, जिससे ये नीचे गिर जाएगी और आज़ाद हो जाएगी। वो लोग ऐसा ही करते हैं और जैसे ही वो उसकी रस्सी को काटते हैं तो वो नीचे गिर जाती है। लेकिन उसमें से एक जिन गुस्से से बाहर आकर कुछ कहने लगता है, हे गाँव वालों, तुमने मेरी रस्सी क्यों काटी? तुम्हें मालूम है ना कि अब तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। उसके कुछ करने से पहले ही उन्होंने उसको आग लगा दी और वो कुछ ही मिनट में खत्म हो गया। एक दफ़ा का जिक्र है, एक गांव में एक आदमी रहा करता था जो बिरयानी बेचा करता था। उसकी बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती थी। वो हर रोज़ बहुत ज़्यादा पैसे कमाया करता था। बिरयानी ले लो, बिरयानी, मज़ेदार बिरयानी। अरे भाई, तुम्हारी बिरयानी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है। कौन से तरीके से बनाते हो? मेरे लिए 2 प्लेट लगा दो। एक दिन बिरयानी बेचकर वो घर वापस जाता है तो वो देखता है कि कमरे की लाइट थोड़ी सी कम लग रही है। वो अपनी बीवी से पूछता है तो वो उसकी बीवी बताती है, अरे मैं तो बताना ही भूल गई कि हमारे कमरे का बल्ब खराब हो चुका है। आप जल्दी से बल्ब चेंज कर दीजिए। जैसे ही वो बल्ब चेंज करने लगता है तो वो नीचे गिर जाता है। उसकी बीवी जल्दी से उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर से मालूम होता है कि उसकी टांग टूट चुकी है और उसकी टांग को सही करने के लिए उसे 8 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। उसकी दवाइयों के चक्कर में वो अपने सारे जेवरात भी बेच देती है और उसका ठेला भी बेच देती है, लेकिन वो ठीक नहीं होता। अब उसके घर में खाने के लाले पड़ चुके थे। वो एक औरत को कहती है कि वो उसे काम पर रख ले। वो औरत उसको खाना पकाने के काम पर रख लेती है। वो जैसे ही उसको बिरयानी बनाकर खिलाती है, वो औरत उसकी बहुत तारीफ़ करती है। मुझे बिरयानी बनाना बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है। ये मैंने अपने शौहर से सीखा था। उनका ठेला हुआ करता था। वो बिरयानी बहुत अच्छी बनाया करते थे, लेकिन एक दिन बल्ब बदलते वक्त उनकी टांग टूट गई, जिस वजह से हम बहुत ज़्यादा गरीब हो चुके हैं। ये सुनकर वो औरत उनकी मदद करती है और उसको 8 लाख रुपए उसके शौहर के इलाज करने के लिए दे देती है। उसका शौहर बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो अपनी बिरयानी की दुकान खोल लेता है और वो दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, एक मुल्क में एक गांव हुआ करता था। वहां पर एक बच्चा रहा करता था अपने माँ बाप के साथ। उसको प्याज और आलू की लड़ाई करवाना बहुत पसंद था। वो समझता था कि ये दोनों सिपाही हैं। अरे और तेज, प्याज को छोड़ना मत, प्याज को मार देना। एक दिन खेलते खेलते उससे आलू नीचे गिर जाता है और आलू में से आवाज़ें आने लगती हैं। अबे आराम से खेल, मुझे क्यों नीचे गिरा दिया? इतनी भी क्या जल्दी है? वो ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन वो ये बात कभी किसी को नहीं बताता है। वो जानता था कि उसके पास सुपर पावर है सब्जियों की बातें सुनने की। अब वो बड़ा हो चुका था, उसके वालिद का इंतकाल हो चुका था। वो अपने वालिद की जगह सब्जियां बेचा करता था। एक दिन जब वो बाज़ार में सब्जियां बेच रहा था, तभी 2 लोगों को बातें करते हुए सुनता है जो जंग के बारे में बातें कर रहा था। उस दिन सब्जियां बहुत ज़्यादा बिक रही थी। उसे ये बात अजीब लगी। अब्बा जान, जितनी भी सब्जियां खरीदनी है अभी खरीद लो, कल जंग होने वाली है। पता नहीं बाद में हमें सब्जियां भी मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। मैंने तो सारी सब्जियां खरीदनी है, आप भी खरीद लें जो खरीदना है आपको। अगले ही दिन जंग शुरू हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। दुश्मन उसके मुल्क को ख़त्म करने ही वाले थे। तभी उसके दिमाग में उसकी सुपर पावर के बारे में एक आइडिया आता है। वो अपनी सुपर पावर से सब्जियों को कहता है, सब्जियों, इनको बड़ा होकर डरा दो और यहाँ से भगा दो।
ठीक है मालिक, जैसा आपका हुक्म। मैं बड़ा होकर उनको डराकर अपने देश को बचा लूंगा। ठीक है मालिक। ये कहकर आलू बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और अपने मालिक से भी बड़ा हो जाता है और वहाँ बाहर निकल जाता है और उनको डरा कर वहाँ से भगा देता है। बादशाह ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसको इनाम दे देता है। फिर वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लग पड़ता है। एक दफ़ा का जिक्र है, एक गांव में एक आदमी रहा करता था। वो मिर्चें बेचा करता था। वो आदमी बहुत ज़्यादा लालची हुआ करता था और बहुत ज़्यादा बेईमान। अपनी बेईमानी की वजह से उसने अपने घर को एक आलीशान घर में तब्दील कर लिया था। अब वो घर से बाहर निकलता है मिर्चें बेचने के लिए। सबसे पहले वो रामू के घर जाता है। वो उनके घर में 3 किलो मिर्चें दिया करता था, जिसके वो उसके पैसे लेता था, लेकिन हकीकत में वो 1 किलो कम दिया करता था। वो उसके घर जाता है। ये लो तुम्हारी 3 किलो की 3 किलो मिर्चें, मुझे इस महीने के आखिर में 10,000 रुपये दे देना। अब मैं चलता हूँ, मुझे और भी घरों में मिर्चें देनी होगी। जैसे ही वो वहाँ से चले जाता है, रामू मिर्चों का इतना कम वज़न देखकर हैरान होता है और उसको बदवा दे देता है। अगर इसने मुझे 3 किलो की बजाय 2 किलो मिर्चें दी हों तो इसको इसकी सज़ा ज़रूर मिले। सब लोग उसको बदवा दे रहे थे जिसके साथ उसने बेईमानी की थी। अब वो घर चले जाता है सारी मिर्चें बेचकर। वो घर जाकर खाना खाता है तो उसका खाना मिर्चों में तब्दील हो जाता है, वो भी सुनहरे रंग की। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब वो जिस भी चीज़ को हाथ लगाता वो सुनहरे रंग की मिर्चों में तब्दील हो जाती। वो बहुत ज़्यादा तंग आ चुका था क्योंकि वो खाना भी नहीं खा सकता था, ना ही पानी पी सकता था। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मैं जिस भी चीज़ को हाथ लगाता हूँ वो मिर्चों में तब्दील हो जाती है। अब वो एक बाबा के पास जाता है। वो बाबा को सारी बात बताता है। बाबा कहता है कि उसे लोगों की मिर्चें वापसी करनी होगी और जैसे ही वो मिर्चें वापसी करता है तो वो किसी भी चीज़ को हाथ लगाए वो सोना नहीं बनती थी। अब उसको उसकी बेईमानी का सबक मिल चुका था और अब वो ईमानदारी के साथ मिर्चें बेचा करता था। एक दफ़ा का जिक्र है, एक गांव में 2 दोस्त रहा करते थे। वो दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त थे। उनमें से एक दोस्त की शहर में नौकरी लगती है। वो अपने दोस्त को बुलाकर ये बात बताता, मेरे दोस्त, तुम्हारे लिए 2 खबरें हैं। एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर ये है कि मेरी शहर में नौकरी लग गई है और बुरी खबर ये है कि मुझे गांव छोड़कर जाना होगा। ये सुनकर वो थोड़ा सा उदास होता है, लेकिन वो अपने दोस्त की खुशी में खुश था। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी नौकरी लग गई है, तुम मुझसे मिलने ज़रूर आना। अब वो अपना सामान पैक करता है और गांव से शहर चले जाता है नौकरी करने के लिए। काम में मसरूफियत की वजह से वो गांव ना आ सकता था। अब उसका दोस्त खुद ही उसके पास आया करता था और उससे मिलकर चले जाया करता था। उन दोनों की शादी हो चुकी थी और वो लोग हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक दिन उसके दोस्त का फ़ोन आता है और वो उसे बताता है कि वो शहर आ रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और अपने दोस्त का इस्तकबाल करता है। ठीक एक दिन बाद उसका दोस्त शहर आता है। अरे आओ आओ मेरे दोस्त, बैठो। मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैं मसरूफ़ होता हूँ, इस वजह से मैं शहर से गांव नहीं आ सकता। तभी उसका दोस्त एक जिन में तब्दील हो जाता है और अपनी सारी कहानी बताता है। मेरे दोस्त, तुमने जो देखा है वो तुम सही देख रहे हो। मैं मर चुका हूँ। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे जाने के बाद एक दोस्त बनाया था। एक दिन मेरी उससे लड़ाई हो गई और उसने मुझे मार दिया। तुम मेरा बदला ज़रूर लेना। ठीक है मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा बदला ज़रूर लूँगा। कल हम गाँव जाएंगे और तुम उसे मार देना। फिर वो दोनों अगले दिन गाँव चले जाते हैं। अरे तुम तो वही हो ना, राघव के दोस्त? और ये तुम्हारे साथ कौन है? क्या ये रमेश है? क्या ये भूत बन चुका है? हाँ, मैंने तो इसे मार दिया था। हाँ, मैं रमेश ही हूँ और अब मैं तुम्हें मार डालूंगा और अपनी मौत का बदला लूँगा। ये कहकर वो उसे मार देता है और वहाँ से गायब हो जाता है।